વેલકમ બેક। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સર્કિટ હાઉસથી નીકળી ચૂક્યા છે। 17 જેટલા જે પ્રોજેક્ટનું લોકાર્પણ છે તે તરફ તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે અને તમામ જગ્યાએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના સ્વાગતની તૈયારીઓ છે। આરોગ્ય વન ખાતે પ્રધાનમંત્રી પહોંચ્યા છે। સંવાદદાતા નરેન્દ્ર રાઠોડ પળે પળની જાણકારી આપી રહ્યા છે, લાઈવ જોડાયા છે અમારી સાથે। નરેન્દ્ર, આરોગ્ય વન ખાતે પ્રધાનમંત્રી પહોંચ્યા છે, હવે પછી કયા કયા પ્રોજેક્ટ તરફ જશે પ્રધાનમંત્રી લોકાર્પણ માટે? વન જે છે એની વિશેષતા ખાસ એ છે કે અહીંયા જે પ્રવાસીઓ કાં તો વહેલી સવારે આવતા હોય એ પ્રવાસીઓ અથવા તો રાત્રે અહીંયા રોકાણ કર્યું હોય એ પ્રવાસીઓ જે છે એમના માટે મહત્વની આ જગ્યા છે, અથવા તો પર્યાવરણ પ્રેમી જે પ્રવાસીઓ અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે એમના માટે ખૂબ મહત્વની આ જગ્યા છે કે જ્યાં આવીને, કારણ કે આ એક એવી જગ્યા છે જ્યાં ઓક્સિજનનું ઉત્કળ જે વધારે ઓક્સિજન આપતા તમામ જે વૃક્ષો છે, પૌધાઓ જે છે એ અહીંયા લગાવવામાં આવે છે અને એના જ કારણે વિશેષ બની રહે છે। આ સિવાય અહીંયા યોગ સહિતની તમામ જે ખાસ વ્યવસ્થાઓ છે એ આ જગ્યા પર કરવામાં આવી છે। અત્યારે હાલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ જગ્યા પર પહોંચી ચૂક્યા છે અને થોડી જ વારની અંદર આ જે સમગ્ર પ્રકલ્પ છે એને તેઓ ખુલ્લું મૂકવા માટે જઈ રહ્યા છે। મહત્વની વાત એ છે કે સમગ્ર નિષેધ કેવડિયા કોલોની તૈયાર કરવામાં આવી છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અને એની આજુબાજુનો જે વિસ્તાર છે એ તમામ જગ્યાઓ પર તમામ પ્રકારના લોકોને આકર્ષિત કરી શકે એ પ્રકારની ખાસ જે વ્યવસ્થા છે એ અહીંયા ગોઠવવામાં આવી છે અને એ વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે જ જે છે અથવા તો તમામ લોકોને આકર્ષિત કરી શકે એ પ્રકારની જે વસ્તુઓ છે એ પૈકીનું આ આરોગ્ય વન છે। આરોગ્ય વનની અંદર ઓક્સિજન વધારે આપતા વૃક્ષો, જેનાથી લોકો જે છે એ જાણકારી મેળવી શકે અથવા તો જે પ્રવાસીઓ રાત્રે રોકાણ કર્યું છે તેઓ સવારમાં આવીને અહીંયા ઓક્સિજન અથવા આરોગ્ય વન જે છે ત્યાં પહોંચી ચૂકે અને એનો જે છે એ આનંદ છે એ માણી શકે અને એના જ માટે આ प्रकल्प જે છે એ તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે। એની અંદર એક અટકાવવા માંગીશું, जो आकर्षण का केंद्र है उसके साथ साथ कई और भी छोटे छोटे गार्डन इसमें बनाए गए हैं जो कि यहाँ पर आने वाले लोगों को काफी सुकून देगा। एरोमा गार्डन है, योग गार्डन है, गार्डन ऑफ कलर्स है, एल्बा गार्डन है, ल्यूटिया गार्डन है और एक एक कर प्रधानमंत्री सबको देखेंगे, सबके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आज के पहले पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन राष्ट्र को समर्पित किया है और इस समय वो आरोग्य वन की यात्रा पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आरोग्य वन का लोकार्पण करने के पश्चात अब गोल्फ कार्ट के जरिए आरोग्य वन में आरोग्य वन मन, शरीर और आत्मा के तालमेल, उसके विकास और संपूर्ण स्वास्थ्य का संदेश देता हुआ इसकी संकल्पना, इसका विचार माननीय प्रधानमंत्री का था जो अब साकार हो रहा है। सत्रह एकड़ में फैला हुआ आरोग्य वन इसमें ऐसी औषधियां और ऐसी वनस्पतियां हैं जो मनुष्य को निरोगी रखने के लिए बहुत आवश्यक है। This is the first port of call here at Arogya Van, a digital information center which has been set up to make visitors understand and familiarize themselves with the heritage and the importance of medicinal plants in our day-to-day lives. Through video screens, और इसके प्रसिद्ध है कि जो हम में जो
young Margi is explaining what this Digital Information Center is all about. From today it will be open to the public, and so if one of you decide to come here, like the Prime Minister has inaugurated Arogyavan today, you would also be coming to the Digital Information Center to have a look around. This information center, in a sense, summarizes what the entire Arogyavan is all about. The Prime Minister taking keen interest. This is, after all, his brainchild to promote health and well-being of the people of India. We are seeing some of the herbs that are found here, and herb of grace, which is good for the brain, have been planted here, as have many other medicinal plants which are of use for various organs of the body, and in the Aushadhamana, which we can see visuals of now. Depending on which part of the organ it is, the plants have been planted to signify what is good for which part of the body. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डिजिटल इंफॉर्मेशन सेंटर में अवलोकन करते हुए अलग अलग आरोग्य वन के वो भाग जिनका यहाँ पर डिजिटल फॉर्मेट में प्रदर्शन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री स्वयं बहुत रुचि लेते हैं तकनीक के समावेश में हर एक निर्माण में, और ये डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम अपने आप में सारे आरोग्य वन में जो अलग अलग उद्यान हैं, जो अलग अलग गार्डन हैं, उनको समाहित किए हुए है, जिनके बारे में जानकारी हासिल की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, साथ में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय अब गोल्फ कार्ट पर आगे की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। आरोग्य वन की एक और जो सबसे बड़ी खासियत है, 5 लाख के आसपास पौधे हैं, 380 प्रजातियां हैं और एक बड़ा क्षेत्रफल है इसका, और यहां पर यात्रा करने के लिए गोल्फ कार्ट उपलब्ध कराई गई हैं। दिव्यांग जनों के लिए भी ये पूरी तरीके से सुगम और सुविधाजनक हैं। जितने भी मोड़ हैं आप देखेंगे उन पर बिल्कुल जेंटल कर्व हैं, कोई शार्प कर्व नहीं है जिससे झटके न लगें। This also depicts the flow of blood through our veins, so also connected to the human body in a way. बिल्कुल शिराओं में और धमनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है मनुष्य में, उनका एक तरीके से प्रतिचित्रण है। ये जो यहाँ पर लेंस बाय लेंस बनाई गई हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जगह जगह रुक करके जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मनी प्लांट हम सभी जानते हैं एक ऐसा पौधा है जो बेंजीन जैसी गैस को खींचता है। सेंसिवेरिया जो कि ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। एंथोरियम जो कि लव प्लांट के नाम से जाना जाता है, दिल की शक्ल होती है उसकी। पीस लिली फॉर्मल्डिहाइड को खींचता है। लोलिना प्लांट 126 साल पुराना पौधा है जो यहाँ पर मौजूद है आरोग्य वन में। बोनसाई 26-27 साल पुरानी, वे उपलब्ध हैं यहाँ पर। एयर प्लांट है जो कि जैसे न तो सॉइल की आवश्यकता है ना ही पानी की आवश्यकता है, और वो हवा से ही अपनी सारी जरूरतें पूरी करता है। केवड़िया जो टूरिज्म सर्किट है उसका अभिन्न अंग है ये आरोग्य वन, जिसका अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय कर रहे हैं। And you know, a little earlier when the Prime Minister was in that digital information center, brought back memories that on International Yoga Day, and that message was actually about unity. He spoke about Yoga Day being a day of unity as it binds everyone together, and when a family comes together to do yoga, is what he said,
it spreads energy in the entire house. So one can see that, with that kind of a mindset, the Prime Minister is moving around in Arogya One, which coheres in a sense with everything that he believes in terms of our understanding of human nature, of mind, body, spirit. And one can see that the very plan, the Aushadh Manav itself, which is the giant three-dimensional layout of the human body in a resting posture, each human organ represented by a medicinal plant beneficial to that particular organ. This is a pavilion which is in the shape of a lotus, and inside are planted indoor plants, so it is like a greenhouse in a way. The indoor plant section, in fact, was created to spread awareness regarding the importance of interior landscapes. And interior landscaping is an important part of providing, the kind of environment which is pleasant, which gives you a sense of relaxation. Also, some of these indoor plants are very important in these pandemic times because they help to absorb all the toxins in the air. इंडोर गार्डन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये कमल की कली की तरह लगता है और ऊपर से ये खुला हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 17 प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं और सबसे खास बात इस इंडोर गार्डन की ये है कि अंतरिक्ष एजेंसी जो नासा है उसने 10 ऐसे पौधों पर रिसर्च किया है जो वातावरण में ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं और प्रदूषण कम करने में सहायक होते हैं। तो आरोग्य वन के इस इंडोर गार्डन में इस समय प्रधानमंत्री अलग अलग चीजों का मुआयना कर रहे हैं और जब रात के समय में इस पर एलईडी लाइटें जलती हैं तो ये इंडोर गार्डन जो है वो कमल की कली की तरह खिला हुआ नजर आता है और ये दूर से नजारा ऊपर से खुला हुआ है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, जो पौधे जहां से भोजन तैयार करते हैं, उसके लिए वैज्ञानिक पहलू के तहत इसे डिजाइन किया गया है कि सूरज का प्रकाश औषधीय पौधों को लगातार मिलता रहे और वो भोजन तैयार करते रहें। और हम सबको पता है कि ये औषधीय पौधे आज के समय में कितना अहमियत रखते हैं। एक तरफ जहां जीवन में, हम सबके जीवन में भाग दौड़ काफी बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ ये दौर कोरोना महामारी का है, तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी औषधीय पौधों का महत्व बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री इस समय इंडोर गार्डन से बाहर निकल गए हैं और आरोग्य वन 17 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस समय प्रकृति और मनुष्य जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक लंबा और प्राचीन नाता है और प्रकृति की गोद में इतने खजाने भरे पड़े हैं कि हम इसे जितना नजदीक से देखते हैं हमें उतना ही अनूठेपन और रोमांच का एहसास होता है। और इस समय प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के राज्यपाल और आरोग्य वन से जुड़ी अपनी यादों को लंबे समय तक सहेजने के लिए यहां वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं इस समय। और इस आकृति के साथ ये संदेश भी कि प्रकृति ने हमें सजाया है, संवारा है, मानवता को यहां तक लेकर आई है। अब इसके बाद मानव की भी जिम्मेदारी है कि वो प्रकृति को संवारे, बचाए और कोई भी नुकसान जो प्रकृति को हुआ है उसे ठीक किया जाए और आगे जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको एक अच्छी पृथ्वी, अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण मिले। It is indeed a circle of life in a sense. What we receive from nature, we have to return for equilibrium to be maintained in ourselves and in nature. आरोग्य वन से एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए भी और अपने आसपास पर्यावरण के लिए भी बहुत कुछ यहां से सीख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और ऐसे पौधों को अपने आसपास उगा सकते हैं, लगा सकते हैं, उनको विकसित कर सकते हैं जिनसे प्रदूषण भी कम हो और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। In fact,
Arogya Van has been conceptualized with sensitivity to the ecosystem of this area. And many of the plants that we see here can be seen in many parts of the country as it is. Many of these plants are around us. We have to understand their medicinal value and use them in our daily lives. प्रकृति और मानव के बीच जो एक अनोखा सामंजस्य है उसे स्थापित करने और उसे परिलक्षित करने का एक सक्षम प्रयास है और बड़ी संख्या में उम्मीद की जा सकती है कि आम जनता, पर्यटक, खास तौर पर बच्चे, उनके लिए काफी कुछ है यहाँ पर सीखने के लिए, चाहे वो प्रयोगात्मक अंदाज में हो या फिर उसे शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें भी इजाफा हो सकता है। Well, Arogya Van is perhaps a unique herbal garden in that sense, but it's not the only one that we have in our country. There are lots of them, and perhaps none of them match this kind of garden. We have botanical gardens in different parts of the country, but they don't have this kind of concept. And that is what the uniqueness of this concept is, that it links everything to unity, with the Statue of Unity right in the center, drawing in all of it around it like a magnet in a sense. So it really stands out in that respect. In fact, it is unique in the way it has been conceptualized and dedicated to Sardar Patel, who himself was very particular about good health. He would often say health should be given top priority, everything else comes next. In his letter to his daughter Maniben, he wrote about the importance of maintaining good health. Skimping in the short term would lead to long-term expenses. For him, health was a holistic concept which must include the weight and vitality of the body. आरोग्य वन को देखकर ऐसा लगता है कि जो ज्ञान हमारी पुस्तकों में आप पढ़ें, आप उसे साक्षात यहाँ देख सकते हैं, सीख सकते हैं और जीवन में अपना सकते हैं। यहाँ का हर कोना अपने आप में बेहद खास है और हर पहलू को बहुत ही नजदीक से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उन्हें समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है हर औषधीय पौधे की विशेषता के बारे में, उसकी खासियत के बारे में। और इस पूरे आरोग्य वन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में जो परेशानियां होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उसके इलाज में कौन कौन से औषधीय पौधे सहायक साबित होते हैं, उसी हिसाब से इस पूरे आरोग्य वन को डिजाइन किया गया है। देश के साथ साथ हमारे पड़ोसी मुल्कों और विदेशों से भी कुछ ऐसे औषधीय पौधे लाए गए हैं जो हमें स्वस्थ रखने में, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में या उम्र बढ़ने के साथ जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने में अहम भूमिका निभाते हैं। We can see the Prime Minister engaged in a conversation with the young guide, and we can see that a lot of young people are involved with this project, which is a sign also of greater opportunities, employment. We know that the entire theme park employs more than 5,000 people directly, and it has the potential to employ the entire region into an ecosystem which can generate a lot of business interest for people who are entrepreneurially minded. आरोग्य वन आत्मनिर्भर भारत का भी एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की बात की थी। जिस तरीके से बहुत ही कम समय में, लगभग 6 महीने के कम समय में आरोग्य वन को विकसित किया गया और इसे पूरा किया गया, ये दिखाता है कि जो संकल्प है, जो प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया था, उसको सिद्धि तक पहुंचाने में अथक परिश्रम किया गया और आज उन तमाम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है जिन्होंने आरोग्य वन के निर्माण में भूमिका निभाई, चाहे वो डिजाइन के स्तर पर हो, चाहे औषधीय पौधों के चयन के स्तर पर हो, चाहे इसे अलग अलग भागों में बांटने के स्तर पर हो। आज उन सब के लिए बेहद ही ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि आज के बाद से ये आरोग्य वन पर्यटकों के लिए खुल जाएगा,
राष्ट्र के अलग अलग लोग यहां पर आएंगे और एक भाग से दूसरे भाग तक प्रधानमंत्री जाते हुए, ये वो इलाका है जो औषध मानव का क्षेत्र है, जहां पे 80 गुना 40 मीटर का औषध मानव है और औषध मानव के अंदर 60 प्रकार के औषधीय पौधे हैं और इसमें शरीर के जिस हिस्से में जो परेशानी है उसी हिस्से में वो पौधे लगाए गए हैं। आराम की मुद्रा में औषध मानव, और सबसे खास बात यह है कि इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं, घुटने के पास दिन में वो सेल्फी पॉइंट बन जाता है और जब सूर्य अस्त होता है तो वो सनसेट पॉइंट भी बन जाता है। प्रधानमंत्री इस समय औषध मानव के सामने। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना परिकल्पना मूर्त रूप लेती हुई भव्य रूप में औषध मानव के समीप आरोग्य वन का ये संभवतः सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आकर्षक भाग है। मानव शरीर के हर अंग के अनुकूल औषधीय पौधों को यहां पर प्रदर्शित किया गया है, यानी हर अंग के अनुकूल कौन सा औषधीय पौधा अनुकूल है, कौन सा प्रतिकूल है, उसकी जानकारी भी है। कुल 60 प्रकार की औषधियां इस मानव औषध में लगाई गई हैं। जिस अंग में बीमारी या कष्ट की स्थिति हो वो औषधि प्रभावी हो, उसी औषधि को उस अंग के साथ समाहित किया गया है, जिसमें गिलोय या ब्राह्मी जैसे कुछ पौधे जो बहुत प्रचलित हैं आज की तारीख में, उनका नाम लिया जा सकता है। औषध मानव में आने वाले लोग जो हैं उनको इसके पत्ते भी यहां पर जो उपलब्ध हैं चखने के लिए दिए जाएंगे। औषध मानव का जो दाहिना पैर है थोड़ा सा उठा हुआ है और वो सेल्फी पॉइंट बनता है दिन में, और शाम के समय सनसेट पॉइंट। ये विहंगम दृश्य है आरोग्य वन का, जिसका अवलोकन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब से कुछ देर पहले उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया। केवड़िया टूरिज्म सर्किट का ये एक बहुत ही आकर्षक, बहुत ही दिलचस्प पड़ाव है, जहां पर सबसे पहले पहुंचे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। औषध मानव के अलावा एल्बा गार्डन, योगा गार्डन, अरोमा गार्डन, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं मनुष्य की, उन सभी पर आधारित उद्यानों का निर्माण हुआ है। और साथ ही यहां पर आरोग्य कुटीर का भी निर्माण किया गया है, जिसे वेलनेस सेंटर के नाम से हम जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरी दिलचस्पी के साथ अवलोकन करते हुए गोल्फ कार्ट पर एक एक जगह रुककर विश्राम करके जो उत्साही गाइड हैं, मार्गदर्शक हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। और यकीनन अपने आप में एक बहुत ही खास अवसर इस उद्यान से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े हर व्यक्ति के लिए। मानव की ज्ञानेंद्रियों के मुताबिक यहां पर उद्यानों का यानी गार्डन्स का निर्माण किया गया है, चाहे वो गार्डन ऑफ कलर्स हो, अरोमा गार्डन हो, योग के लिए गार्डन हो, एल्बा गार्डन, यूटिया गार्डन, सेक्रेड गार्डन, ये तमाम इस तरह के उद्यान हैं जो स्वास्थ्य की अवधारणा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो एकता के सूत्र में बांधने की बात है, वो विचार, वो चाहे स्वास्थ्य से जुड़ा हो, चाहे बच्चों से जुड़ा हो, चाहे भविष्य से जुड़ा हो, हम उसको केवड़िया के इस पूरे इलाके में अपने आसपास महसूस कर सकते हैं और अब साक्षात देख रहे हैं। The duck on water is a perfect symbol of equilibrium. It seems so calm on the surface, and yet one knows how it has to struggle to remain afloat. आज विषय पर बात यथावत राखीશું, हाल एक ब्रेक। આપણે દ્રશ્ય જીવંત નિહાળી રહ્યા છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જે આરોગ્ય વનનું અવલોકન કરી રહ્યા છે, તેમની સાથે સીએમ અને રાજ્યપાલ પણ હાજર છે। સીધા જીવંત દ્રશ્યો केवड़िया आरोग्य वन थी। इसके बारे में पर्यटन की दृष्टि से लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया भर से
अब लोगों की जिज्ञासा इस स्थान के लिए जाग रही है और आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये पर्यटन का, स्वास्थ्य का और जिज्ञासा और जानकारी का नया गंतव्य, नया केंद्र होगा। The Prime Minister arriving at the Arogya Kutir, a wellness center where traditional medicines, massages, various plants and herbs are used for the wellness of a human being. So this wellness Therapies center, like Shirodhara, which is part of the Kerala tradition of Ayurveda. yes, this wellness center is the government of Gujarat has joined hands with the Santigiri Ashram from Kerala for this wellness center, and as we were saying earlier, this ashram has loads of experience, more than 50 years of experience in ancient treatments and systems of Ayurveda, Siddha, Yoga. And what is provided here are treatments like Dhara and various other kinds of treatments, therapeutic massages which are very popular in Kerala. And this Arogya One, you know, it's much more than just a garden, as we can see. It is a forest, and that's what one is. It is a forest of surroundings which are good for a human being. In fact, many of the herbs that are sold here or are available have been collected from the forest all around, from close to 160 villages from this area. People from the forest come here and give their products to which they have foraged in the forest to this. હાલ સમય છે એક વિરામનો. બ્રેક બાદ જોડાશે સહયોગી ભાવિકા. હું લઈશ રજા.